آج میں دوبارہ روح القدس کے بپتسمے کے بارے میں بات کروں گا. تھوڑی سی بیک گراؤنڈ بیان کر دوں, پھر ہم اپنی آیت کی طرف چلیں گے. جب عید پینتیکوست کے دن روح القدس نازل ہوا تو اس سے پہلے بھی روح القدس زمین پر آتا تھا گائے بڑائے, کسی کام خاص کام کے لیے, مخصوص کام کے لیے, کسی خاص نبی پہ, کسی خاص خدا کی حضور میں پر روح القدس آتا تھا. جو کام اس نے کروانا ہوتا تھا وہ کر کے روح القدس واپس چلا جاتا تھا. کسی خاص موقع پہ, کسی خاص شخص پہ روح القدس نازل ہوتا تھا, آسمان سے آتا تھا, واپس چلا جاتا تھا. یہ میں کب کی بات کر رہا ہوں, میں نے کیا کہا تھا, پینتیکوست سے پہلے. تو پھر یہ پڑھتے ہیں, یوئیل نبی نے کوئی خداوند یسوع مسیح سے کے پیدا ہونے سے پہلے سینکڑوں سال پہلے ایک پیشن گوئی کی, نبوت تھی, پروفیسی. اور یہاں کیا لکھا ہے, اور اس یہ یوئیل نبی کی کتاب دوسرا باب اس کی 28ویں اور 29ویں آیت یہاں لکھا ہے, اور اس کے بعد میں ہر فرد بشر پر اپنی روح نازل کروں گا اور تمہارے بیٹے اور بیٹیاں نبوت کریں گے, اور تمہارے بوڑھے خواب اور جوان رویا لکھیں گے, بلکہ میں وہ یام میں غلاموں اور لونڈیوں پر اپنی روح نازل کروں گا. یہ یوئیل نبی کی معرفت خدا نے سینکڑوں سال پہلے یہ پیش گوئی جو ہے دے دی کہ اب تو یعنی یوئیل کے زمانے میں اس وقت تو کبھی کبھی آتا تھا, کسی ایک پہ آتا تھا, مخصوص کام کے لیے آتا تھا اور چلے جاتا تھا. مثال دے دیتا ہوں, سمسون کے بارے میں لکھا ہے, اور خدا کی روح اس پر زور سے اتری, اور اسی طرح سے اوروں کے بارے میں بھی لکھا ہوا ہے. تو اس کا مطلب کہ بعد میں واپس چلا جاتا تھا اپنا مخصوص کام کر کے. لیکن یوئیل نے کہا اب ایسا نہیں ہوگا, آخری زمانہ ایک ایسا زمانہ آئے گا جب اس میں ہر بشر پر ڈالوں گا, ہر بشر. ویسے تو ہمارے اندر جو روح ہے اپنی روح, میں خدا کی روح کی بات نہیں کر رہا, میرے اندر ایک روح ہے. کس کس کے اندر روح ہے؟ جب مرتے ہیں تو وہ روح نکل جاتی ہے. یہ روح بھی خدا نے ڈالی ہے. آدم و حوا کو بنانے جب بنایا ہے, مٹی کا مجسمہ بنایا, اس میں اپنا دم پھونکا, یہ بھی اس کی روح ہے جو ہمارے اندر ہے, لیکن یہ ہماری ہے. ہم بات کر رہے ہیں خدا کے روح کی. خدا نے کہا میں ہر بشر پر ڈالوں گا. تو جو لوگ کہتے ہیں نا کہ گرجا ڈالے, مندر ڈالے, جو کچھ کہتا ایک بندے کا دل نہ توڑی رب کو دے وچ رہتا, میں اس سے متفق نہیں. ہر بندے میں رب نہیں رہتا, خدا صرف اپنے لوگوں کے اندر رہتا ہے, ساتھ ہے, آس پاس ہے, ہر جگہ موجود ہے, اندر نہیں رہتا. اندر ایک خیال درست بھی ہے, اندر جو روح ہے وہ خداوند نے دی ہے, وہ بھی اسی نے ان کا اسٹیچو کے اوپر آدم کو, اور یہ روح بھی اسی کی ہے. اس حساب سے ٹھیک ہے کہ یہ روح بھی تو اسی کی ہے جو ہمارے اندر ہے. اب خدا کا روح وقت آتا تھا. یوئیل کے معرفت خدا نے کہا, پیشن گوئی کی کہ ہر بشر پہ بلا امتیاز, اب پیغمبر نہیں, نبی نہیں, اب بڑے بڑے سورما نہیں, ہر بشر پر روح نازل کروں گا. اور ساتھ یہ کہا بیٹے اور بیٹیاں نبوت کریں گے. اور پرانے عہد میں بھی نبوت کرتی تھی بیٹیاں, جیسے دبورا ہے اور بھی ہے. لیکن یہ تو زمانہ کچھ اور ہی ہے. ہر بشر پر نازل کروں گا, جو مانگے گا مل جائے گا. تو ہر بشر پر نازل کروں گا. اور آگے لکھا ہے وہ بیٹے اور بیٹیاں نبوت کریں گے, اور آخر میں لکھا ہے میں غلاموں اور لونڈیوں پر بھی روح نازل کروں گا. جو کرائے پہ رہتے ہیں, جو جھونپڑی پہ رہتے ہیں, ان پہ بھی, جن کا اپنا گھر نہیں ہے ان پہ بھی, جن کی نوکری نہیں ہے ان پہ بھی روح القدس نازل کروں گا. بس روح القدس نازل ہونے کی شرط یہ ہے پاکیزگی ہو, کیونکہ روح القدس کا مطلب ہے پاک روح. تو پاک روح گندے دل میں نہیں آئے گا, پاک روح میں آئے گا. تو یہ پیشن گوئی ہوئی. تو یسوع مسیح کے پیدا ہونے سے سینکڑوں سال پہلے پھر یوحنا بپتسمہ دینے والا آیا. پڑھیے نیکسٹ. آج میں یوں ہی آہستہ چلنا چاہتا ہوں ہنی کی طرح,
समझते जाए साथ साथ। फिर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु मसीह से पहले पैदा होने से पहले पैदा हुआ और उसने मनादी करना शुरू की। क्या लिखा है मत्ती की 30:11 आयत, क्या लिखा है, मैं तो तुमको तौबा के लिए पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन जो मेरे बाद आता है मैं उसकी जूतियां उठाने के लायक नहीं, वो तुमको रूह कुदस और आग से बपतिस्मा देगा। इसका मतलब है यूएल की पेशन गोई को यूहन्ना ने दोहराया कि ऐसा होगा। इंतजार कर रहे थे जो लोग सैकड़ों साल से, यूहन्ना ने और इंतजार में डाल दिया। लेकिन जब कहा कि जो आएगा जिसको मैं बपतिस्मा दूंगा वो तुम्हें पाप को बपतिस्मा देगा। अब यीशु आया, 3.5 साल मनादी की लोग इंतजार कर रहे थे कि अभी यूएल की पेशन गोई पूरी हो जाएगी, अभी जो यूहन्ना ने कहा ये पूरा हो जाएगा, नहीं हुआ। फिर यीशु ने मुनासिब जाना कि मैं इनको बता ही दूं, मैं इनको बता देता हूं कि रूह जो है वो कब आएगा। तो पढ़िए यूहन्ना की चीज 14 16वीं 17वीं आयत। तो यीशु मसीह ने फिर शागिर्दों को बता ही दिया, और भाई अभी नहीं, जब मैं जाऊंगा तब भेजूंगा। क्या लिखा है, और मैं बाप से दरखास्त करूंगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा। पहले ही मददगार घट नहीं, यीशु नाले दो ठीक है, नाले दो तो नाले छोड़ियां। यीशु ने कहा एक मैं मददगार हूं, दूसरा मददगार भेजूंगा कि अब तक तुम्हारे साथ रहे। मतलब मैं तो जा रहा हूं, मैं तो आसमान पे चले जाऊंगा, लेकिन वो अब तक हमेशा तक तुम्हारे साथ रहेगा। यानी रूह हक, पाक रूह, जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती। दुनिया से मुराद भला क्या है, गुनहगार। याकूब के खत में लिखा है ना इस दुनिया से मोहब्बत रखो ना दुनिया के कामों से। इसका क्या मतलब है, दुनिया का मतलब है गुनहगारों से। तो दुनिया उसे हासिल नहीं कर सकती क्योंकि ना उसे देखती है ना जानती है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे अंदर होगा। यानी उस वक्त भी रूह साथ था शागिर्दों के, लेकिन अंदर नहीं था। साथ होने और अंदर होने में फर्क है, ये यीशु ने बता दिया। फिर जब यीशु मरा, दफन हुआ, जी था, कितनों को ये बातें याद होगी जो मैंने बताई है। पहले नबी में किसने पेशगोई की, हेलो, किसने पेशगोई की, यूएल नबी ने। इस पेशगोई को किसने दोहराया, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने। किसने इसको कहा कि जरूर नाज़िल होगा, कब, यीशु ने कहा, यूहन्ना की 24वें बाब में। फिर यीशु हुआ, दफन हुआ, आसमान में चला गया जी उठने के बाद। आसमान पर जाने से पहले, अब फिर सुनिए, यीशु मसीह हुआ, दफन हुआ, जी था, और आसमान पर जाने से पहले यीशु ने उन्हें हुक्म दिया, खास हुक्म दिया शागिर्दों को। पढ़िए जरा एमाल की किताब, उसका पहला बाब 4-5 आए, क्या लिखा है, और उनसे मिलकर उनको हुक्म दिया कि यरूशलेम से बाहर ना जाओ। मिलकर, चेचा मिल के जो पंजाबी कहते हैं, स्पेशली मिलकर शागिर्दों को स्पेशली मिलकर उनको क्या दिया, हुक्म दिया कि मशवरा दिया। आप बोलिएगा प्लीज, मुझे मतलब गर्मी है, आज हो सकता है बात हम जल्दी खत्म कर दें। तो मैंने क्या कहा, वो क्या कहते हैं कि मशवरा दिया या हुक्म दिया। हुक्म का मतलब है कि मानना है। यीशु ने हुक्म दिया, क्या दिया, यरूशलेम से बाहर ना जाओ, बल्कि बाप के उस वादे के पूरा होने का कि मुंतज़िर रहो जिसका जिक्र तुम मुझसे सुन चुके हो। यानी पिछले यूहन्ना की इंजील के 24वें बाब में सुन चुके हो, क्योंकि यूहन्ना ने तो तुमको पानी से बपतिस्मा दिया, मगर थोड़े दिनों के बाद तुम रूह से बपतिस्मा पाओगे। थोड़े दिन के बाद, आसमान पर जाते वक्त भी नहीं, रूह से बपतिस्मा देके नहीं गया। क्या कहा, थोड़े दिन के बाद। तो आसमान में जाने के कितने दिन के बाद रूह नाज़िल हुआ, इसलिए वो तो जी उठने के बाद 50 दिन बाद गया, लेकिन आसमान पर जाने के 10 दिन बाद। 10 दिन शागिर्द दुआ करते रहे। 120 लोग थे, मुकस्समरीन थी, चंद और औरतें थी और ईमानदार थे, 12 शागिर्द थे। दुआ करते रहे, भाव वो वादा पूरा कर, ऐ यीशु वादा पूरा कर, यूएल नबी की पेशन गोई पूरी कर, यूहन्ना ने जो कहा वो पूरा कर, रूह भेज दे, हम यकीन है, तूने कहा था
यतीम ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास से चले जाऊंगा, रूह कुदस भेजूंगा, उसे भेज दे। तो फिर क्या हुआ? अब देखने में थोड़ा सा तेज भी हूं और आहिस्ता भी। तेज इस तरह से कि मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहा हूं ताकि ये पूरा कलाम आपको याद आ जाए। देखिए मार्क की किताब पहला बाब 8 किया सामने लिखिए। तो जब चौथी 5वीं आयत, दोनों आयत में यीशु ने कहा मैं जाऊंगा, लेकिन जाके तुम पहले हुक्म दिया यरूशलेम में ठहरो, इंतजार करो। और फिर साथ ही कहा लेकिन जब रूह कुदस तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। अभी तुम्हें कुव्वत नहीं है, जब रूह कुदस नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। यहाँ एक गलत फहमी है बहुत से लोगों में, मैं चाहता हूँ बहुत से सुने, जरा हाथ में लाएं ताकि मुझे पता चले कि आप सुन रहे हैं। गलत फहमी और गलत तालीम है। वो कहते हैं बहुत लोग रूह कुदस शख्सियत नहीं है, पर्सन नहीं है, ये कुव्वत है। मुझे बताएं बिजली क्या है? एनर्जी, कुव्वत है। क्या बिजली बोलती है? बोलिए भाई, क्या बिजली मशवरा देती है? आपकी आवाज आनी चाहिए। हुक्म देती है, कोई काम करने से रोकती है, लेकिन कुव्वत है। रूह कुदस शख्सियत है, बोलता है, देखता है, हुक्म देता है और मना करता है और कुव्वत देता है। रूह कुदस is not simply the power, he gives the power। अब आपको समझ आ गई? जो लोग कहते हैं रूह कुदस पावर है बस जी, उनको कहीं गलत है। वो बिजली वाली मिसाल दे रहे हो। तो यीशु ने कहा रूह कुदस नाज़िल होगा तो कुव्वत पाओगे, पावर पाओगे। और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में बल्कि ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह हो गए। और फिर क्या हुआ? आपको पता ही क्या हुआ। देखिए दूसरा बात जो किया है, आखिर इंतजार की घड़ियां खत्म, इंतजार की घड़ियां खत्म। 16 साल से कहा था रूह कुदस आएगा, अब टाइम आ गया और वो सब रूह कुदस से भर गए। और 120 लोग जो हुक्म मान के चले गए बाला खाना के ऊपर और दुआ कर रहे थे कि अपना वादा पूरा कर। क्या हुआ? और वो सब रूह कुदस से भर गए और गैर ज़बानें बोलने लगे जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। बोलने लगे, सब बोलने लगे, रश बढ़ गया, सब बोल रहे थे, हजारों लोग इकट्ठे हो गए। और यरूशलेम में ईद के दिन थे और पूरी दुनिया से यहूदी वहां जमा हो गए बेशुमार लोग। और जब वो मजाक उड़ा रहे थे कि ये क्या है, ये नस्ल में क्या है, ये तो नशे में है, ये तो या आजकल भी कई लोग कहते हैं उन्हें नाम समझाए, मुझे नाम ले लेते थे, कोई बात नहीं। बैतनिया एक फिरका है, वो कहते हैं कि ये जो गैर बोलती है उर्दू में बोलती है। एक बार मेरी वो कोयटा गई और हम एक बैतनिया के चर्च में थे बैठे हुए, तो गैर में दुआ करनी उन्होंने शुरू की। अगर कोई किसी का कोई बैतनिया रिश्तेदार है उनका मैं तो सॉरी, लेकिन सच्ची बात मुझे करनी है। तो मेरी वो जो मीटिंग में गई वो दुआ कर रही थी गैर में, तो बैतनिया के पास उठे, उन्होंने सर पे हाथ रखा और कहा यीशु के नाम से निकल जाए बदरू। इस कदर वो गंदी और गलत तालीम देते हैं रूह कुदस के बारे में। अब बदरू होती है तो निकलती, जितना कहते बदरू निकल जाओ उतना और जोर से और कुव्वत से मेरी बुद्धि जो है वो बोलने लगी और आखिर वो खामोश हो गए और उन्हें पता चला कि ये तो बात हुई। फिर मेरे वालिद साहब ने खुदा को कबूल किया और रूह कुदस से भर गए। अभी वहां पेंटिकॉस्टल काम नहीं था, मेरे वालिद पहले पेंटिकॉस्टल थे, तो बैतनिया का ही काम था वहां पे, बैतनिया की इबादत में थे, बैतनिया मिशन की। और मेरे वालिद निजात पाने के फौरन बाद, शायद 1 महीने के बाद, बीमारों पे हाथ रखना शुरू कर दिया। बीमार अच्छे होते थे, बदबूएं निकलती थी, बड़े बड़े दियो और जिन निकलते थे। तो उन्होंने कहा कि ये क्या तमाशा है उनके लफ्जों में, जैसे कि यहाँ पे लोगों ने कहा ये क्या तमाशा है, ये तो नशे में है। तो बैतनिया वालों ने क्या कि अच्छा आज देखते हैं। वो एक नौजवान लड़के को, समझे जी इसकी एज का होगा, सुनी आपकी एज का, एक नौजवान लड़के को अपने साथ लाए कि जब हम कहेंगे उस वक्त तूने शो करना है कि तुझे बदलू है। और क्या हुआ? मीटिंग शुरू हुई, मेरे वालिद साहब वहां मीटिंग में थे और वो लड़का जो है ना वो शरारती करने लगा जैसे बदलू गिरफ्तार करता है। और किसी ने मेरे बाप से कहा ब्रदर जी पे हाथ रखे, लेकिन उन्होंने अपने अंदर कोई कुव्वत फील नहीं। जब वो किसी बदरू गिरफ्तार को देखते थे एकदम कुव्वत से भर जाते थे, लेकिन कोई फील नहीं कर रहे कि मुझे कुछ कहना है।
اور پھر ہوا کیا, اس کو مار کے نوجوانوں نے ٹوٹے مار کے مکے مار کے باہر نکالا. پھر وہ منتے کرنے لگا سوری سوری سوری, میرا قصور نہیں, مجھے تو بھائی غلام لے کے آئے, بھائی غلام لے کے آئے, بھائی دوکا, یہ اصلی نام ہے ان کے اس وقت, یہ لے کے آئے. میرے ماموں کہنے لگے جی میرے بھائی کی بڑی بےعزتی ہوئی ہے. انہوں نے کہا میں پوچھ رہا ہوں, لیکن میرے والد نے کہا نہیں, خدا دیکھ رہا ہے. پھر ان میں سے بہت سے لوگ مسیح پر ایمان لائے, وہ بپتسمے لیے, غیر سوالوں کے ساتھ وہ بولتے رہے. اسی بیتنیہ میں سے بہت سے لوگ غیر سوال کے ساتھ آپ سے پڑھے. اچھا, تو یہ بات جو میں بتا رہا ہوں کہ جب روح القدس نازل ہوتا ہے, غیر سوال نشان ہے. غیر سوال بولنے لگے, کیسے روح انہیں بولنے کی توفیق دیتا تھا. پھر جب, اب میں 2-3 واقعات بیان کروں گا, اب آپ کہانیاں کہیں, 2-3 کہانیاں. روح القدس نازل ہونے کا نشان غیر زبان ہے. میں نے آج تک کہیں نہیں سنا کہ روح القدس نازل ہوا ہے, پاک روح کا بپتسمہ ملا ہے, روح القدس کا بپتسمہ ملا اور غیر زبانیں نہیں بولی. میں نے آج تک نہیں سنا. اور بائبل میں بھی ہمارے پاس ایک کتاب ہے, بائبل مقدس, اس کے اندر ایک نئے عہد نامے کی 5ویں کتاب کون سی ہے؟ نئے عہد نامے کی 5ویں کتاب کون سی ہے؟ اعمال کی کتاب. اعمال کی کتاب رسولوں کے کاموں کو بیان کرتی کہ رسولوں نے کیا کیا. پوری ایمان کی کتاب خاموش ہے, کہیں ایسا نہیں لکھا غیر زبان کے ساتھ اس کا بپتسمہ ملا. تو نشان یہ ہے. اب میں 2-3 واقعات سناتا ہوں. پہلا واقعہ ہے, فلیپس نام ایک عام آدمی تھا کلیسیا میں, یروشلم کی کلیسیا میں. عام آدمی کا مطلب ہے کہ وہ رسول نہیں تھا, وہ ایونجلسٹ نہیں تھا, عام آدمی تھا, لیکن انتظام میں مدد کرتا تھا, لوگوں کو اٹھانے میں, کھانا تقسیم کرنے میں, ہر کام میں مدد کرتا تھا. اور کیا ہوا, وہ سامریا میں چلا گیا. کتنے سن رہے ہیں؟ ابدیا. فلیپس کس شہر چلا گیا؟ سامریا میں. کہاں چلا گیا بچوں, آپ بتائیے نایاب, کہاں چلا گیا؟ سامریا. جب سامریا میں گیا, وہاں کیا ہوا, وہ اس نے منادی شروع کی, لوگوں یسوع مسیح جی اٹھا ہے, وہ زندہ ہے, وہ آسمان پر ہے, اس نے روح القدس نازل کیا ہے, میرے اندر پاک روح ہے, آپ کے اندر بھی آ سکتا ہے, توبہ کرو, گناہوں سے باز آؤ, پانی کا بپتسمہ لو. تو کیا ہوا, انہوں نے بہت بے شمار لوگوں نے توبہ کی, پانی کا بپتسمہ لیا. جادوگر مسیح پر ایمان لائے, جادوگروں نے اپنی کتابیں چلا دی. ادھر یروشلم میں پتا چلا کہ یار وہ ادھر بندہ تھا ایک فلیپس, وہ تو سامریا میں گیا, اس نے تو کمال کر دیا. وہاں تو کلیسیا بن گئی ہے, وہاں تو لوگ جو ہے وہ بدویں نکلی ہیں, اور بڑے لوگوں نے بپتسمے لیے. بزرگوں نے پترس سے کہا اور یوحنا سے, ہیڈ کوارٹر یروشلم تھا, کہا کہ جاؤ وہاں جا کے دیکھو تو صحیح, کوئی غلط تعلیم نہ دے رہے ہو. بڑوں کو فکر ہوتی ہے کہ کوئی غلط کام تو نہیں ہو گیا. جب پترس اور یوحنا گئے, انہوں نے دیکھا سب ٹھیک ہے, یسوع کے نام سے بپتسمے ہوئے پانی کے, اور پھر بدویں نکلی اور بہت سے لوگ ایمان لائے. لیکن پترس نے کہا, یار آپ میں سے کوئی بھی غیر زبان نہیں بولتا, کوئی پاک کا بپتسمہ نازل میں آپ کو نہیں ملا. آئیے پڑھتے ہیں اعمال کی کتاب, اس کا 8واں باب 16ویں 17ویں آیت. لکھا ہے, کیونکہ اس وقت تک ان میں سے کسی پر روح نازل نہ ہوا تھا, انہوں نے صرف خداوند یسوع کے نام کا بپتسمہ لیا تھا. یسوع کے نام کا, یہ باپ بیٹے نے اس نام کا بپتسمہ لیا تھا فلیپس سے, توبہ نہیں کی تھی, لیکن دوسرا بپتسمہ نہیں ملا تھا. پھر انہوں نے, یعنی پترس اور یوحنا نے ان پہ ہاتھ رکھے اور انہوں نے روح القدس پایا. ہاللیلویا. اور آگے بڑھے وہ غیر زبانی بول رہے تھے. تالیاں نہیں بجائیں گے؟ پہلا سبوت, دوسرا سبوت بھی چاہیے, سن لیجیے. دوسرا سبوت, ایک گورے کو, اٹلی کا گورا تھا, اور اس کا نام تھا کرنیلیس. بہت بڑا آفیسر تھا, کیونکہ اس زمانے میں روم کی حکومت تھی, تو یہ رومی تھا. تو غیر قوم, کیونکہ یہودی صرف سمجھے جاتے ہیں کہ وہ خدا کی قوم ہے, باقی ان کو غیر قوم کہتے ہیں, تو یہ غیر قوم تھا ہماری طرح. تو کرنیلیس کو خدا نے کہا خواب میں, پترس فلاں جگہ پہ ٹھہرا ہوا ہے یافا میں, اپنے بندے بھیج اور اس کو بلا لے. سن رہے ہیں آپ سب, کتنے سن رہے ہیں؟ کرنیلیس کو خواب میں دکھائی دے کر کہا, پترس یافا میں ہے,
वहां ठहरा हुआ है, वहां बंदे भेज दे अपने और उसको बुला के ले आ। उन्होंने पतरस को भी खुदा ने रोया में बुलाया कि अभी चंद लोग आएंगे और तुझे कहेंगे कि चल कर्नेलियस के घर बेफट के चुप करके चले जाना। रूल्स दो तरफ बोल रहा है, उधर बोल रहा है कर्नेलियस से और इधर पतरस से। लिहाजा दरवाजा खटका, पतरस से कहा किसका पूछ रहे हो? उसने कहा पतरस के बारे में। उसने कहा चलो हम साथ चलते हैं। पतरस गया और उस जिस घर में ठहरा था वहां से अपने साथियों को लेकर कर्नेलियस के घर पहुंचे। अब कर्नेलियस के घर में क्या हुआ? कर्नेलियस के घर में ये हुआ, बड़ी इस्राएल बात की किताब 11वां बाब, पतरस ने वहां कलाम सुनाना शुरू किया, तौबा का, निजात का, बपतिस्मे का और रूह कुदस के बपतिस्मे का। जब कलाम सुनाना शुरू किया, देखा जब मैं कलाम करने लगा तो रूह कुदस उन पर इस तरह नाज़िल हुआ जिस तरह शुरू में हम पर नाज़िल हुआ। वही दो बाब वाला गैर ज़बानों वाला, बेशक नाम ही लिखा हो, नाम ही लिखा हो गैर ज़बान में। जब वो कहता उसी तरह जिस तरह हम पे हुआ था, तो क्या मतलब है? आप बताइए। गैर ज़बानों के साथ उसी तरह नाज़िल हुआ जिस तरह शुरू में हम पर नाज़िल हुआ था। और मुझे खुदा की वो बात याद आई जो उसने कही थी कि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, मगर तुम रूह कुदस से बपतिस्मा पाओगे। वो याद पर बात या यीशु ने कहा था, ये तो वही बात हो गई है। और फिर आगे बात ये बनती है कि पतरस की पेशी हो गई। लोगों ने कहा यार तू वहमों में चला गया। उसने कहा मैं अपने आप नहीं, आप तो रूह कुदस से भेजा था। और फिर सारा काम बताया और बड़ी तारीफें हुई, खुदा उनको चला गया। दूसरा वाक्या, तीसरी कहानी सुनिए। इफिसस एक शहर था, अभी भी है, टर्की में। यहां पर चंद लोग थे जिन्होंने तौबा की थी, यीशु मसीह के नाम से अपने गुनाहों से माफी मांगी थी। लेकिन गलती एक हो गई थी उनसे। गलती हुई, बपतिस्मा भी लिया, होते का लिया, लेकिन गलत लिया। कितने सुन रहे हैं? जरा प्लीज मैं चाहता हूं एक एक बात समझ आनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। नाराज तो नहीं कि मैं बार बार पूछता हूं। तो एक गलती थी वहां पे। गलती ये थी, तौबा भी की, निजात पाई, बपतिस्मा भी लिया, लेकिन गलत लिया। लिखा है यूहन्ना के नाम का लिया। यीशु ने क्या किया था? क्या कहा था? बस जाओ सब लोगों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो। ये अभी कोई दे रहा जो यूहन्ना ने दिया था। और मैं तुझे बाप और बेटे कहने की बजाय मैं तुझे यूहन्ना के नाम से देता हूं। बपतिस्मा तो ठीक था, लेकिन ठीक नहीं था, क्योंकि बाप और बेटे और उसके नाम से नहीं था। तो इफिसस में पौलुस क्या पकड़िए जी, जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो रूह कुदस उन पर नाज़िल हुआ और वो तरह तरह की ज़ुबानें बोलने और नबूवत करने लगे। और फिर जब उन्होंने रूह कुदस नाज़िल हुआ तो बाद में उनको फिर होते का बपतिस्मा बाप बेटे रूह कुदस के नाम का दिया गया। कितने सुन रहे हैं? इसलिए मैं छोटे बच्चों की बपतिस्मे की बात ही नहीं करता, तो बाइबल में लिखा ही नहीं है, लेकिन होते का भी गलत है। अगर जिस तरह बाइबल में लिखा है उस तरह से नहीं दिया गया, वो भी गलत है। तो ये काम हुआ वहां पे। अब आखिर में मैंने कहा तो जल्दी पैगाम खत्म करूंगा। रूह कुदस मिलने के लिए निशानी मैंने क्या बताई है? जरा बोलिए, क्या निशानी है? ये एविडेंस है, स्पीकिंग इन टंग्स। लेकिन मिलता कैसे है? आपने सुना भी है, मैं बयान करना चाहता हूं। शागिर्द क्या कर रहे थे? 120 की जमात क्या कर रही थी? क्या कर रही थी? बोलिए। तो बैतनिया वाले ये कहते हैं कि रूह कुदस मिल जाता है, तौबा की बात तो बहुत मिल जाता है, सब में है। शागिर्दों को मिला, कब मिला? जब वो दुआ कर रहे थे। क्या कर रहे थे? तो दुआ करने से मिलता है। एक आयत पढ़िए, पहले यही पढ़ रहे, लूका 11 बाब 13वीं आयत। बस जब तुम बुरे हो, ये यीशु के अल्फाज हैं, बस जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना चाहते हो तो आसमानी बाप अपने मांगने वालों को रूह कुदस क्यों ना देगा? ये मैं चाहता हूं इसे दोहराएं यहां से, तो बोलिए, तो आसमानी बाप अपने मांगने वालों को रूह कुदस क्यों ना देगा? मांगने वालों को। मांगेंगे तो मिलेगा, मांगो तो तुमको मिल जाएगा, ढूंढो तो फिर तुम पाओगे। गाइए, मांगो तो तुमको मिल जाएगा, ढूंढो तो फिर तुम पाओगे।
मेरे कौन से भाई है, तो मांगो तो मिलता है। और यहाँ यीशु ने साफ कह दिया मांगो तो रूह कुछ मिलेगा। फिर मुझे बताइए यीशु मसीह दुआ कर रहा था जब उसको रूह कुछ मिला, कबूतर की बात क्या कर रहा था, क्या ख्याल है? आप पीछे से भी बोल सकते हैं, यीशु को भी रूह कुछ मिला, क्या कर रहा था यीशु? यूनान से बपतिस्मा लेके क्या कर रहा था, ये मैं आपको बता देता हूँ। पढ़िए लूका की सभा, और मैं एंड करने वाला हूँ 21-22 में। जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया यूहन्ना से, और यीशु भी बपतिस्मा पाकर, आगे क्या लिखा है, और यीशु भी बपतिस्मा पाकर, यीशु को दुआ की क्या जरूरत थी, वो इंसान बन गया इसलिए। और दूसरी बात हमें सिखाना था कि उनको दुआ करने से मिलता है, लिहाजा वो जो गलत तालीम देते मत माने उनकी। जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया, यीशु भी बपतिस्मा पाकर, बोलिए आगे, दुआ कर रहा था, तो ऐसा हुआ कि आसमान खुल गया, रूह जिस्मानी स्वरूप में नाज़िल हुआ यीशु का। और फिर यीशु ने रूह की कुदरत से भर के मौत से की है, यीशु ने रूह की कुदरत से भर के मौत से की है, मुर्दों को जिंदा किया, अतों को आंखें दी, 5000 को खाना खिलाया, और पानी और हवा को थमा दिया, नामुमकिन काम कर दिए रूह की कुदरत से। ये लूका की किताब में चौथे बाब में लिखा हुआ है कि यीशु रूह से भरा हुआ फुल था, बपतिस्मा उसको मिल चुका था। और मिलता कैसे है, आपने क्या सीखा है, कैसे मिलता है, किस लिए मिलता है? वो ये आज मैंने भी बड़ी इमाम वाला पाठ में है। नेक्स्ट जी, मैं चाहता हूँ सब कठे बोले, लेकिन जब कठे बोले, जब रूह तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे, और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में बाकी ज़मीन की तहा तक मेरे गुलाम हैं। मेरे जब रूह पाक दे देगा तेरे, जब रूह मिलेगा तेरी भी आ जाएगी, कुव्वत भी आ जाएगी, पावर मिल जाएगी, और तुम पावर के साथ, कुव्वत के साथ, इख्तियार के साथ मोर्चे करोगे। तो फिर काम जब रूह नाज़िल होगा। तो कई लोग कहते हैं इसकी क्या जरूरत है, जो कहते हैं रोमियो में लिखा है जिसमें मसीह का रूह नहीं वो मसीह का रूह, ये बहुत जरूरी है। बहुत से लोग इसको गैर जरूरी समझते हैं, और निशान इसका है सिर्फ गैर सवाल। अच्छा, मुझे चंद दिन पहले किसी ने सवाल किया, किसी हमारी सड़क पे ही एक बुजुर्ग भाइयों ने सवाल किया, वो कहने लगे कि गैरसमान में हम दुआ जब करते हैं, हमने उसने कहा जब गैरसमान में दुआ होती है तो जो दुआ कर रहा था उसको पता ही नहीं होता वो क्या मांग रहा है, वो तो अपनी जरूरत के मुताबिक मांग ही नहीं रहा होता, उसको तो पता ही नहीं क्या मांग रहा है, तो उसकी क्या जरूरत है, मतलब अपनी जबान में करे, पता तो हो कि क्या कर रहा हूँ। ये किसी ने मुझसे सवाल किया, उसका जवाब मैंने ये दिया। पढ़िए रोमियो भाई, आशर ऊंची बात पढ़िए, 8वां बाब 26 में आए, बैठे बैठे पढ़ते। इस तरह रूह भी हमारी कमजोरी में मदद करता है, क्योंकि जिस तौर से हमको दुआ करना चाहिए हम नहीं जानते, मगर रूह कुछ ऐसी आयें भर कर हमारी शिकायत करता है जिनका बयान नहीं। हाँ जी, तो किसको हमें दुआ करनी आती है? नहीं आती। पौलुस रसूल कहता है मैं रूह में भी दुआ करूंगा और अकल में भी। अकल में करें, जरूर मांगे अकल से, जब रूह में करते हैं तो अकल बेकार हो जाती है। रूह में करें नहीं, मेरा मतलब है अकल से भी करें, मांगे, लेकिन गैर समान में तो खुदा को असल पता है कि इनकी जरूरत है। या लिखा जिस तरह से दुआ करनी हम नहीं जानते, मगर रूह जब हमारे अंदर आता है ऐसी आयें बार बार के गैर समान में दुआ होती है कि खुदा को समझ आती है। हवाला सामने नहीं है, मैं वैसे बोल देता हूँ। दुआ जो है गैर समान में, अच्छा मुझे बताएं दुआ किससे की जाती है? किससे दुआ की? आप बोलिए, किससे दुआ करते हैं हम? बाप से। किससे दुआ करते हैं? बोले किससे करते हैं? खुदा बाप से। दुआ खुदा बाप से करते हैं, और खुदा हमारी दुआ सुनता है, रूह उसको नाज़िल करता है, कुव्वत देता है। तो हमें खुदा से दुआ करनी है कि आए खुदा पापों से भर दे, यीशु अपना वादा पूरा कर दे, रूह उसको भेज दे। और साथ ये भी कहे खुदा तेरा शुक्र और रूह उसके लिए जो जमीन पे है, पेंतिकोस्त में वो जमीन पे आ गया। अब हर फर्द बशर के लिए ऑर्डर है और ये तालीम है कि हर शख्स हासिल कर सकता है। और मैंने छोटे छोटे बच्चों को आसमान में बोलते देखा है, अनपढ़ों को देखा है। मेरे पास सब अनपढ़ थे, टोटली अनपढ़ थे,
اور میں زمانے میں بہت زیادہ دعا کرتے تھے, بدرو گرفتہ پہ ہاتھ رکھتے تو بدرو نکل جاتے, قوت تھی, دلیری تھی. ایک دفعہ میں اور میرے والد کسی بدرو گرفتہ کے لیے دعا کرنے گئے, جن تھا اس کے اندر. جب میں اور میرے والد وہاں گئے تو جو جس گھر میں گئے وہ بزرگ اٹھا اور کہنے لگا, بھائی جی تھی کہاں چلے. انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا میں آپ کی عزت کرتا ہوں, آپ بزرگ ہیں. انہوں نے میرے باپ سے کہا, بھائی جی تھی کہاں جاؤ دعا کرو. انہوں نے کہا کیوں؟ کہتے میں آپ کی عزت کرتا ہوں, آپ میرے بزرگ ہیں. تو انہوں نے کہا کیا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ جو میرا بیٹا ہے اس میں ایسی تنظیم قسم کی بدروئیں ہیں کہ جو دعا کرنے آتے ہیں ان پہ حملہ کر دیتا ہے. ملے جب روئے پاک دے دے گا میرے لیے. انہوں نے کہا لاؤ اس کو لے کے آؤ, اور جیسی دعا کی وہ تھوڑی دیر تک اس نے تماشا لگایا اور پھر نیچے گر گیا اور خدا نے اس دیو کو نکالا. بولے ہالےلویا, بولے ہالےلویا, ہالےلویا. تو یہ قوت کی ضرورت ہے, دلیری کی ضرورت ہے, کلام سننے کی ضرورت ہے. آج میں کلام یہاں پہ اینڈ کر رہا ہوں اور آپ سے کہتا ہوں روح اس کے لیے پاکیزگی حاصل کریں, پاک ہو جائیں.